Lakhimpur is concerned, Chhattisgarh Chief Minister at the Lucknow airport sits on dharna, says cops have blocked my entrance. He's sitting on dharna at the Lucknow airport. There you can see Bhupen. यहाँ पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों रिसीव किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलने वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। All right, let's go to Abhishek Mishra, who's right there at the Lucknow airport for the very latest. Abhishek, what's the drama unfolding? Well, absolutely, Mausami. You know, the politics have emerged after what happened in Lakhimpur Kheri. First, Priyanka Gandhi Vadra, you know, being adamant on the fact that she wants to go there, she will meet the farmers. But now, Bhupen Baghel, who just reached airport, Lucknow airport, is on dharna when the officials were stopping him. They were saying that you cannot go outside because of a few of the orders and few of the reasons were given. But he's adamant on the fact that he will leave. He also tried to come to Lucknow earlier also, and he's also adamant on the fact that he will reach to Lakhimpur Kheri. And but it looks like it's going to be a big tussle between the government and the opposition. And since he's the Chief Minister of Chhattisgarh, that is also something which is of another importance. A sitting CM is sitting there on dharna, raising questions over the kind of treatment being given by the Uttar Pradesh government. Clearly give us an indication that how far this whole incident is going to be as far as the opposition is concerned. We've also seen how Priyanka Gandhi Vadra has voiced against the kind of treatment she's getting. A video has been shared by the Congress where it was said that, you know, the UP government is trying to keep an eye on her, and now Chhattisgarh CM, who is at the Lucknow airport, sitting on dharna, accusing the government of ill treatment and saying that have been stopped. Yes. Right. Right, Abhishek. Okay, so full drama rolling out on the streets. We are standing outside the PSC campus where now Priyanka Gandhi Vadra has been put under arrest. This is a temporary jail that you see right behind me with the Congress Karyakartas sitting on dharna. A big escalation of politics with Priyanka Gandhi, in fact, asking Prime Minister that question, that under what sections has she been detained if she's not been served even one paper. Abhishek, what's the update we have on that? Priyanka Gandhi finally been arrested along with 11 others. Well, absolutely, she has been arrested and she will be presented in front of the magistrate. And it's been a sort of, you know, a big tussle between the congressmen and the workers and Priyanka Gandhi Vadra when she left from Lucknow towards Lakhimpur, then was detained at the Sitapur. It's been more than 24 hours that she was kept in that particular guest house, and the kind of allegations the congressmen were making. But now it is quite clear that she has been arrested along with the others. I mean, Mausami, we have seen how the full, you know, this incident by far has been offered by the opposition to question the government, and specifically Congress AICC General Secretary Priyanka Gandhi Vadra has been very vocal about it. She has been, you know... I'd like to pause you there, Abhishek. I'd like to pause you there because, you know, we're getting a breaking update. We've got the Tic Tac exclusive interview of Ajay Mishra, the son of the minister, MOS Home. Let's hear that out. रिसीव करने के लिए भेजते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रिसीव पॉइंट पहुंचने से पहले उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, लाठी से मारा गया, बांका, काता, बल्लम, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया, जिससे दुर्घटना हुई और उसमें हमारे 4 कार्यकर्ता बुरी तरीके से पीट करके उनकी हत्या कर दी। बचे किसान जो किसान हैं, अब उनका कैसे क्या हुआ, मतलब जिस तरीके से कार्यकर्ता जो बच करके निकल के भाग के आ पाए हैं,
उन्होंने ये बात बताई है कि पत्थर और लाठी और बांका जब मारा गया है तो ड्राइवर जो है ऑन स्टीयरिंग अचेत मुद्रा में आ गया था, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई और डिसबैलेंस होने के बाद में जहाँ भी गई हो, क्योंकि वीडियो के अंदर तमाम आपने देखा होगा कि उसमें उसके ऊपर चढ़ करके गाड़ी पर तोड़ रहे हैं, गाड़ी को नीचे गिरा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये किसानों का कार्य तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान कौन था वहाँ पे? निश्चित रूप से किसान ऐसा नहीं हो सकता। किसान के आंदोलन में निश्चित रूप से कुछ अराजक तत्व तो रहे होंगे, जिसका प्रमाण आपको देखने को मिला है। आप लोगों के टीवी पर भी चलाए जा रहे हैं वो जो टी शर्ट पहने हुए हैं, और कुछ एक पत्रकार कल गए थे उनसे कवरेज लेने के लिए, तो उनको मार के भगाया भी गया है वहाँ से। बीजेपी के लोग कह रहे हैं खालिस्तानी एंगल है इसमें। बिल्कुल है, क्योंकि उसमें कुछ टी शर्टें वगैरह सब सामने आई हैं, वो कपड़े पहने हैं खालिस्तान का, उसका ये सब जो है बब्बर खालसा वाली टी शर्टें और तमाम सब चीज़ें उसके अंदर हैं। बल्कि किसानों के भीड़ में अराजक तत्व घुस करके उन्होंने किसानों को भी बदनाम करने का काम किया है। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर था मेरा हरिओम मिश्रा, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, करा रहा है खून से लथपथ है, वो कह रहा मेरा है। ड्राइवर था हरिओम मिश्रा। वो मेरी गाड़ी थी महिंद्रा थार, उसको ले करके रिसीविंग के लिए जा रहे थे। एक महिंद्रा थार थी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और एक छोटी कार थी। किसान बार बार पूछ रहे हैं कि आपको उन्होंने भेजा है, तेरी नहीं भेजा। तो उसमें उन्होंने पूछा कि आपको टेनी ने भेजा है, लेकिन मार पीट करके उससे उगलवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने सत्य ही बताया कि मुझको भेजा है रिसीव करने। जी, एक वीडियो आपने देखा होगा, एक वायरल हुआ, एसयूवी किसानों को कुचलते हुए जा रही है। किसान कुछ ऊपर गिर रहे हैं, कोई नीचे गिर रहे हैं। किसकी एसयूवी? अब वो चूँकि मौकाए वारदात पर तो हम नहीं थे, तो अब वो तो इसमें इसकी जांच का विषय है। जांच आएगी तो जो भी आएगा, जो जांच का विषय है उसमें जो भी स्पष्ट आएगा वो तो बताया जा रहा है कि आप स्पॉट पर थे जब ये हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो ले करके बैठा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। मैं ये भैया पासवर्ड इसका क्या है, तो उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान, और ये पूरी इतनी भीड़ है, करीब 2 से 3 हज़ार लोगों की संख्या की भीड़ रही होगी जी। और ये दंगल का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहाँ पर था। घटना कितने बजे की और वीडियो कितने बजे का? शूट कितने? वीडियो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको सुबह जो है 12:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का वीडियो दे देंगे, क्योंकि वहाँ पर अब चूँकि मैं आपको स्पष्ट बता दूँ 2.5 से 3 हज़ार वहाँ पर पब्लिक, नंबर 1 चीज़। दूसरी, डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, तो उसमें एडिशनल एसपी, सीओ, मतलब प्रशासनिक अमला पूरा वहाँ मौजूद था। तीसरी चीज़, दूर दराज से आए हुए पूरे पहलवान मौजूद थे, अड़ोस पड़ोस दुकान वाले थे वो मौजूद थे। आज का तो युग ऐसा है कि आप चाहेंगे तो सबके, जिन लोगों ने फ़ोटो लिया होगा, वीडियो होगा, सबको सामने आ जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आपको नॉलेज शायद हो, कि जिसमें आप लोग के अगेंस्ट एक चलाया जा रहा था मूवमेंट। उसके पीछे भी मुझे सुनने में आया है कि न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है और जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता है कि आपके पिताजी जो वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उनके उस बयान की वजह से पूरी हिंसा भड़की? उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। कुल मिला के हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था, वो सांसद जी को जो कार्यक्रम में जहाँ पर आपने बताया बयान, उसमें किसान गोष्ठी का ही आयोजन था, किसानों ने ही उनको आमंत्रित किया था। लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले भारत माता के चित्र को फाड़ा गया, हमारी होर्डिंगों को फाड़ा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, मोदी जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, योगी जी की सब, मतलब उन्होंने तहस नहस किया। तो वहाँ पर ये कहा गया कि किसानों के वेश में जो लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं, और जो वो लोग अपने ऐसे लोग पहुँच गए हैं जो किसानों को प्लस जो अपने लोग हैं इनको भ्रमित करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कि ये कहा गया था कि भाई ये गलत चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अपराधी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें आप गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं, आपने शायद देखा हो, काफ़ी वायरल हो रहा है। नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं चैलेंज करता हूँ इस वीडियो को। मुझको आप स्वयं देख लीजिए, मैं किस प्रकार का व्यक्ति आपको लग रहा हूँ, आपराधिक छवि का लग रहा हूँ कि कैसा लग रहा हूँ। ये कहीं कुछ नहीं है। गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, मैं यही मांग। बहुत बड़ी बात, आपके पिताजी ने आज तक से बात करते हुए तक कह दिया कि अगर वो उस जगह पे पाए जाते हैं तो मैं अपने पद दे दूँ, उसे इस्तीफा दे दूँ। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पर पाया जाता तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पर जिन कार्यकर्ताओं के साथ जैसी घटना हुई है, मैं शायद आज आपके पास न बैठा। आशीष जी, आपने कहा आपने कुछ नहीं किया, आप स्पॉट पे नहीं थे, सारी बातें माननी है, तो एफआईआर में आपका नाम क्यों लिखा गया? अब ये तो उन लोगों ने दबाव बनाया हो या जो भी हो भाई, पुलिस पर दबाव बनाया उन लोगों
सरकार तो बीजेपी की ही है इससे। तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है भाई? देखिए लोकतंत्र है, उन्होंने ये दिखाया, उसका प्रमाण वो दे। अगर हम वहाँ पर थे हमारे, उन्होंने दबाव तो कंप्लेंट बनाया होगा, एफआईआर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की बात करती है। नहीं कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। एफआईआर तो हुई। अच्छा, तो वो विशेष जानकारी हमारी नहीं, लेकिन मुझको कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी करने में हमारी कानून व्यवस्था। 1-2 दिन हो गया आपसे, अभी तक आपसे यूपी पुलिस ने संपर्क भी नहीं किया है इस बारे में। अभी तो जांच ही चल रही है। देखिए टीवी में हमने देखा था कि उसमें जांच चल रही है कि वो जज साहब जांच करेंगे। नहीं, आपके नाम की एफआईआर हुई तो मतलब संपर्क करने की कोशिश नहीं हुई उस तरह से? आपने संपर्क करने की कोशिश की? ना, हम क्यों संपर्क करेंगे भाई साहब, हमने कुछ किया ही नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैंने कोई नहीं किया। मैं बनवीरपुर में सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का उपस्थित रहा। मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहा हूँ, मैं घटना जहाँ पर हुई है वहाँ पर नहीं था। अगर आपकी गाड़ी से घटना हुई तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? गाड़ी से घटना हुई है, अब इसकी पहले जांच हो। गाड़ी से घटना, जैसे मान लीजिए गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, उसको पत्थर मार दिया जाए, वो अचेत मुद्रा में आ जाए, मैं कहता हूं कि बड़े से बड़ा ड्राइवर होगा, वो अगर असंतुलित हो गया वाहन, कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो ये कैसी जिम्मेदारी हुई? घटना का प्रारंभ कैसे हुआ, घटना किसने शुरू करी? आशीष जी, आपने कुछ सोचा है कि पुलिस मान लीजिए आती है घर पे पकड़ने या समन करने, तो आप क्या करेंगे? वकीलों की कुछ? हम न्यायिक जांच पर विश्वास रखते हैं। जो न्याय होगा, मुझको पूरी तरीके से हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी। कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई? बिल्कुल हुई है, और बल्कि कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। जिन लोगों को बरगला करके ये लोग लेकर के आए थे, उसमें भी तमाम लोग की घटना हुई है। बड़ा दुख और बड़ा खेद का विषय है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना हुई और हमारे कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीट करके उनको मार दिया गया। बहुत निंदनीय है, मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूँ। कंपनसेशन तो खाली किसानों को लेकर है, जो ड्राइवर हैं, जो कार्यकर्ता, एक लोकल जर्नलिस्ट है, उनको लेकर कंपनसेशन तो अनाउंस नहीं, बिल्कुल सबको मिलेगा। जो लोग खत्म हुए हैं सबको करा जाएगा। हम भी ये मांग करेंगे सरकार से। हमारे कार्यकर्ताओं को बेरहमी से, केवल उनका इतना दोष था कि वो चीफ गेस्ट महोदय को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत है। सबको मुआवजा, सबको बराबर मिलेगा। विपक्ष कह रहा है ना, आपके ऊपर पहले ही बहुत आरोप लगते रहे हैं इस तरह के। विपक्ष का ये कहना है, भले अखिलेश हो, प्रियंका गांधी हो, ट्वीट भी लगातार आप देख ही रहे कर रहे हैं, आप कैसे जवाब देंगे? एक आरोप बता दें, एक भी हमारे ऊपर इसके पहले कौन से भाई आरोप लगे हैं? तो एक भी स्पष्टीकरण दे दें। विपक्ष कह रहा है कि प्लान था, कराया गया। तो ये उन लोगों ने प्लान किया होगा, उन लोगों ने प्लान किया होगा, हमको तो नहीं पता था। हम तो भाई निस्वार्थ भाव से अपने पुश्तैनी कार्यक्रम को कर रहे थे, और उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता रिसीव करने चले गए। अब वो बता रहे हैं प्लान था, तो हो सकता है हो। आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे, नाम एफआईआर में तो हो गया, एफआईआर भी हो गई है, अब अपना पक्ष आपको क्लियर करना है, आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और न्यायिक जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। और मैं पुनः आपसे यही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी जो भी वीडियो या जो भी लोग बता रहे हैं, मैं घटना स्थल पर नहीं था। मैं प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर से श्री अंबिका राइस मिल बनवीरपुर के मध्य में ही था, सुबह 9 बजे से कार्यक्रम समापन होने तक। आखिरी सवाल, राकेश टिकैत ने कह दिया जब तक आपकी अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक ये पूरा प्रदर्शन तो किसान करते रहेंगे। तो राकेश टिकैत ने कहा कि अगर अरेस्टिंग नहीं होगी, तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जब लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इतने बड़े आंदोलन की जिम्मेवारी कैसे ले सकते हैं? किसान हमारा देश का ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतना उग्र हो, परंतु उसके अंदर वो टी शर्ट पहन करके वो लोग गोलीबारी कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। मैंने कल देखा भी, आपकी मीडिया के लोगों को भी धक्का मुक्की करके भगाने का काम किया है। तो क्या आप मानते हो कि ये किसान नहीं हो सकते? तो हम पर एफआईआर हुई है तो उन पर भी होनी चाहिए। इतना बड़ा संगठन चला रहे हो आप, और आपके कंट्रोल में ये लोग नहीं है। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप ध्वजा, काला झंडा दिखाइए, लेकिन किसी दूसरे को क्यों आप पीट रहे हो, रोक रहे हो, गाड़ियाँ मार पीट कर रहे हो, हत्याएं कर रहे हो? तो ये तो गलत है। गलत तो खैर ये भी है कि गाड़ी से किसी को रौंद देना। खैर ये थे हमारे साथ आशीष मिश्रा साहब। इनका कहना है कि इनका भरोसा है न्यायिक जांच पर, अगर कुछ होता है, पुलिस समन करती है आके, तो ये न्यायिक पे भरोसा करेंगे। उन्होंने एक और मांग करी है, या अगर मेरे अगेंस्ट एफआईआर है तो राकेश टिकैत के ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट साफ नजर आता है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। So there, Samar spoke exclusively to Ajay Mishra, bringing us that interview on India Today. Earlier, he had a word with his father, Ajay Mishra, the Minister of State for Home Affairs. Hear him out, because he says that if his son is spotted at the site of the incident, he will put in his resignation. Hear this special interview.
जो लगा रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण से इस घटना को अंजाम दिया है। उन लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे यहाँ 40 साल पहले से ये कार्यक्रम हर प्रतिवर्ष होता है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री जी आ रहे थे। उनको गाड़ियों से 2-3 गाड़ियाँ गई थी जो रिसीव करने के लिए जा रही थी और उन पर पथराव हुआ। अजय मिश्रा जी, वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ है, जिसमें कि जो है वो किसानों को कुचलते हुए जा रहे हैं। देखिए, वो तो जब पथराव हुआ होगा या उन्होंने बचने की कोशिश की होगी। आप मैं वहाँ तो था नहीं, जो सामने वाले को कुचल देंगे। जो अरे भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ कुचल दे, मैं जब वहाँ था ही नहीं तो मैं उसके विषय में क्या कह सकता जा रहा है कि आपकी अब वहाँ की क्या परिस्थितियाँ रही हैं, किस तरह से गाड़ी पर हमला हुआ, कौन लोग दौड़ा रहे थे, कैसे हुआ, ये तो सारी बातें पर जो वहाँ लोग उपस्थित हैं वही बता सकते। साहब, आपके बेटे वहाँ बताया जा रहा है उपस्थित थे, उसी गाड़ी में? बिल्कुल नहीं थे, उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर उनके फोटो, वीडियो, ऐसी सारी चीज़ें हैं। प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी थे, 1000 से ज़्यादा की भीड़ थी, लोग भी अपने मोबाइल से फ़ोटो बना रहे थे। वो सारे सबूत हैं। उसके साथ साथ हज़ारों लोग एफिडेविट देने को तैयार। एक और सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गन लोड करते हुए आपके बेटे नजर आ रहे हैं। कहाँ वहाँ का नहीं होगा। हमारे बेटे के पास अपना लाइसेंस है और लाइसेंस अपने घर पर अगर कोई रखता है या अपने सुरक्षा के लिए रखता है उसका उसको। अभी कहाँ है बेटे? हमारे यही है, लखीमपुर में है। उनके ऊपर तो FIR हो गई। तो FIR हो गई तो क्या हो गया? जांच हो रही है। घर पे ही है वो, पुलिस उनको पकड़ने नहीं है। नहीं, क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई? जब वो थे ही नहीं घटनास्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है कि वो है। नहीं है कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ पे। अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार? Right here outside the PSC campus, you can see the mood after news of Priyanka Gandhi's arrest has come. Congress workers charged up have put up this makeshift tent to camp here. They thought this was a long overhaul. आइए बात करते हैं प्रियंका गांधी और 11 के समेत जो है धारा 107 और धारा 116 के तहत बुक किया गया उनको शांति भंग करने का। क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री के बेटे ने जिस तरह हरदोई में किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाकर जो हत्या करने का, लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने का जो कुचक्र प्रयास किया है, उसके विरोध में हमारी नेता केवल उनके परिवार से मिलने जा रही थी और उसके विरोध में प्रशासन ने उनको रोककर यहाँ पर उनको रोकने का काम किया। उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए। मुझे समस्त देशवासियों से यही कहना है, 1947 के पहले जो देश की हालत थी, जिस तरह से MB एक्ट कानून का उपयोग किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश के नागरिकों के ऊपर, सेम कंडीशन आज हमारे देश के उन किसान भाइयों के ऊपर किया गया है जो अपने हक। प्रियंका कह रही थी धारा नहीं बता रहे हैं किस धारा के तहत। अब धारा 107 और 116 लगाई है प्रशासन ने प्रियंका के खिलाफ और 11 लोगों के खिलाफ उनके ऊपर मुकदमा दायर किया। क्या कहेंगे? देखिए, अगर प्रियंका दीदी को धारा लगाने के बाद में अगर जेल भी भेजा जाता है तो हम सब कांग्रेसी जेल जाने के लिए तैयार हैं और हर तरीके से तैयार हैं। So here you can see Congress workers right behind, everybody taking a cue to speak on the mic. This is a moment of reckoning for Congress workers who are hoping that perhaps Priyanka Gandhi can in fact enthuse the farmers here. 4 farmers were mowed down in Lakhimpur Kheri on Sunday. Farmers claimed that an SUV hit them. And behind the wheel was none other than Union Minister Ajay Mishra's son, Ashish Mishra. Video tweeted by Priyanka Gandhi and AAP Sanjay Singh has put out a video on Twitter which shows an SUV coming from behind, mowed down many farmers. As you can see on your screen, that farmers are walking on the road and all of a sudden an SUV came from behind and crushed them. India Today has also accessed another video of Lakhimpur Kheri violence. This video on screen, you can see it on your screen, viewers, was shot just moments before cars mowed down protesting farmers. Here the farmers are carrying a black SUV. You can see that black SUV in the frame. They shouted slogans against the BJP and showed black flags. The situation turned violent after the incident. Angry farmers set ablaze 3 cars, including an SUV, which ran over farmers. They attacked people in the cars with lathis. 2 BJP workers, 1 driver, 1 local journalist also killed in the violence.
it went unabated, and this was the time when it got really difficult to curtail the situation, and stories were flowing from all corners. Perhaps now let's get in to the politics of it. A lot of political reactions coming in from the Congress, the Samajwadi Party, to the AAP and the MIM. Opposition parties have joined the bandwagon. Here, let's hear the political reactions. वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर FIR के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना, जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। किसानों की हत्या हुई है। हिटलर शाही में भी ऐसी गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी। जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है, किसानों की जान ली है। जिस तरीके से वीडियो सामने आया है जहां पे गाड़ियां किसानों को कुचल दे रही हैं, उस पे किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष के नेताओं को बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी नोटिस के उनको हिरासत में ले लिया है। क्या इसी तरीके से मोदी सरकार प्रजातंत्र की बात करते हैं, कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, उसका हनन कर रहे हैं? ये सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि अब तक जो किसान परिवार है, पीड़ित परिवार हैं, अब तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं और सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। कल जो वीडियो सामने आया वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की आत्मा को हिलाने वाला वीडियो, वो निश्चित रूप से ये बताने वाला वीडियो है कि आजादी के 75 साल के बाद देश के अन्नदाताओं की कीमत सत्ता की निगाह में एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं। मंत्री की गाड़ियां किसानों को किस निर्ममता के साथ कुचलती हुई, रौंदती हुई, उनकी हत्या करती हुई जा रही हैं। ये वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। In fact, viewers, it's the evidence, the viral videos that have spiraled this entire incident out of control. There are 7 chilling videos that India today has accessed, and we've pieced together these videos to explain to you how the atmosphere got so violent and vitiated. Let's look at the first video. You can see the first video. The first video is of the farmers harrowing the vehicles. You can see the SUVs in the frame, and you can hear how the protesters chant slogans and throw stones at the vehicles as they speed by. Let's look at video 2. Another video shows farmers surrounding a black SUV, refusing to let the vehicles go as they chant slogans and raise black flags. Black flags, you can see. Moments after this comes the moment that will send chills down your spine. And here's the chilling video, video 3. An SUV rams into protesting farmers in full speed. The protesters who are seen marching forward, oblivious to the speeding cars, get tossed into the car. 4 protesters dead in this horrifying moment. The vehicle that appears to be a broken windscreen runs over protesters, and then it looks like the driver loses control. This is the most chilling video. Now here's the video 4. As soon after the vehicle mows down protesters, people can be seen dumping their vehicles and fleeing, fearing backlash. Like this unidentified person who gets out from the passenger's seat and runs from the spot. Here's video 5.
live for you viewers. The horror continues. Watch this video where the driver of the Jeep is dragged out and beaten over and over again. A group of men can be seen with lathis beating the driver till he is motionless. All the while, another group tries to turn the vehicle turtle. This is video 6. Angry protesters torch vehicles. In this video, 2 SUVs are on fire. Protesters walking around the cars as they burn. And this, viewers, is the last video, last of the 7. And finally, here's a video of a BJP worker who was injured in the clashes. Shyam Sundar was targeted and thrashed, and he's coerced into naming Union Minister Ajay Mishra. क्या पढ़ना भेजा है ना जी, टेनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टेनी ने? टेनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। So you can see that how these chilling videos have in fact shocked the nation. These are pieces of evidence that the agencies will be looking at very closely. There are evidences over the statements that have been given on either sides. There are chilling videos that have actually been in the thick of the entire argument, claims and counterclaims. And in fact, the agencies have already taken into control as far as, piecing to all the entire evidence is concerned.